Good morning, students. Today is lecture number 8 of thermal properties of matter, and first I'll be finishing Mayer's relation, because in the previous class we saw that when we talk about gases, unlike solids and liquids, gases cannot have one specific heat. So when we tried to explain it, there were totally 4 procedures: isothermal, isobaric, isochoric and additive. So now when we go for the formula, C is equal to dq upon m या तो n dt. When do we use m? When we talk about mass in terms of kilogram or gram. And when we talk about n, that means we are talking about kilomole या तो mole. Yes or no? So when you go for dq, that means adiabatic process, right? Q talks about energy constant and T talks about temperature constant. So when Q is constant, dq is 0, your answer of C is 0. And when dt is 0, your answer for C is infinity. So we said that a gas can have infinitely many specific heats. But if a gas is having infinitely many specific heats, then as an observer you are in fix, because now you don't understand how much heat is to be supplied, because dq is equal to m या तो n times c times dt, and c is uncertain. Yes or no? So to come out of this uncertainty, we talk about other 2 coordinates. Totally we had 4 coordinates: p, v, t, q. Right? When pressure is constant, dp is 0, volume is constant, dv is 0, temperature is constant, dt is 0, energy is constant, dq is 0. These 2 are putting us in fix, and therefore we should use this 2. Right? When there is no change in pressure, that means there is change in volume. Yes or no? When dp is 0, that means p is constant. That means volume is allowed to change, and here pressure is allowed to change. So whatever is constant, you will put that as suffix. Right? When you talk about Cp, you are saying that it is specific heat of a gas at constant pressure. Solid and liquid नहीं बोलने का. Solid and liquid नहीं बोलने का. When you talk about Cv, it is specific heat of a gas at constant volume. When you talk about छोटा Cp and छोटा Cv, बड़ा Cp and बड़ा Cv are molar specific heats. छोटा Cp and छोटा Cv are principal specific heats. In both the circumstances, did we say that Cp is greater than Cv? Yes or no? So today we are going to prove systematically कि Cp is greater than Cv exactly by what amount? Cp is greater than Cv exactly by what amount? That means we don't only know that Cp is greater than Cv, but also we know that Cp is greater than Cv by some certain exact amount. Okay, so today is the start of that article, and that article is Mayer's relation. Suppose when I discuss the simplified part of it, I give the example of pressure cooker. Right? That in pressure cooker you are taking water, heat energy supplied to that water becomes hot. Finally it gets converted into steam. So that steam also gets hotter. Ultimately the steam pressure will become so much that it can easily exceed the atmospheric air pressure. Right? So in place of pressure cooker, now I am taking a gas cylinder. Now I am taking a glass cylinder. This is called block. This is called block. This is called piston. This is called piston. तो प्रेशर कुकर का जो लीड होता है ना, ढक्कन, now we are going to call this as block, and this block is having some area A, and this is called piston, जिसको हम लोगों ने whistle बोला था कुकर, right? Now the pressure of the gas is say P. Pressure of the gas is P. That means the cylinder is already filled with some gas, nitrogen, oxygen, LPG जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, liquefied petroleum gas, CNG, compressed natural gas. That means this gas is already having some pressure. It is already having some volume, and volume of the gas means the volume available for the gas molecules to move. So if I push this piston down, then the gas is compressed because it gets less volume. And if I move this piston up, right, then the gas is getting more volume to move. Yes or no? The temperature of the gas is T. Pressure of the gas, volume of the gas, temperature of the gas are known as thermodynamical coordinates.
Now I will understand this, right, by hitting it under two circumstances. Step number one. Do you see the block at the same level? इसका मतलब volume available for the gas molecules to move is the same. Volume available for the gas molecules to move is the same, right? But the gas is heated. And the gas is heated. That means the temperature is increasing from T to some new value, T plus dt. Because the volume is remaining constant, the pressure should change. Because the volume is remaining constant, the pressure should change. So the new pressure is going to be P plus dP. This is going to be my case 1. Case 2 is, I will come back to the original parameters. I will again hit the gas. Let me call this as step 2. This time you can see the block moving up. इसका मतलब डॉटेड लाइन इंडिकेट्स दैट ब्लॉक पहले इधर था, अभी ऊपर गया. इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा. The gas molecules are getting more volume to move freely. अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. इसका मतलब जो कांस्टेंट रहता है ना उसको मैं सेम कलर यूज कर रहा हूं. ओके, इन द प्रीवियस डायग्राम प्रेशर वाज P, वॉल्यूम वाज V, temperature was T. Now the temperature is increased from T to some new value T plus dt. Because of that the pressure is changing from P to P plus dP. But the volume is remaining the same. Right? Then I am coming back to the first parameters. Then I am going from first diagram to third diagram. Then that is I am studying one at a time. And then we are going to combine the results. So when I go from 1 to 3, you can see the block moving from this position up to this position. That means this much. The one which I am shading with green, can I say, is the increment in the volume? Yes or no? So what are the new parameters? The new parameters are the temperature was increased from T to T plus dt again. Right? But this time pressure of the gas is kept constant. And the volume is increasing from V to V plus dV. So, case 1 is called dQV. What is the meaning of dQV? Heat energy supplied keeping volume constant. And this is called dQP. What is the meaning of dQP? Heat energy supplied to the gas keeping pressure constant. Please let me know. Have you understood the diagram? Because after that the explanation is super duper simple. Have you understood the diagram? Sure बेटा. Case 1 क्या कांस्टेंट रखा है? Case 1 मतलब हम लोग डायग्राम 1 से डायग्राम 2 की तरफ जा रहे हैं. तो क्या कांस्टेंट रखा है? वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है. Right? Now my formula for supplying heat is dQ is equal to mc dt या तो mc dt. We are talking about kilomole of a gas. That means n kilomoles of a gas is taken in a cylinder, right, which is covered with a block and which is controlled with a piston. Right? Volume is kept constant. So what can I say about the supplied heat? Can I say dQV is equal to n CV dt. बेटा बड़ा C क्यों लिखा मैंने? Because मास की बात कर रहा हूँ. छोटा C लिखता अगर मैं मास की बात करता. Yes or no? So can I say dQV is equal to n CV dt? Let us call this as equation 1. Now according to Clausius, याद करो, according to Clausius law, can I say dQ is equal to du plus dW? Right? dQ is equal to du plus dW. That means the supplied heat is utilized in increasing the internal energy. Internal energy को आप du भी बोल सकते हो, de भी बोल सकते हो. Both are allowed. Yes or no? Whatever is comfortable to you. Okay. Now this is dQV again. Therefore
dqv is equal to du plus pdv. अब ये pdv कैसे आया, ये pdv कैसे आया, इसको ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से सुनो, एवरीबडी हियर, राइट. यहां पे मैं इसका प्रूफ लिख रहा हूं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में. Do we know from mechanics that work done is force into displacement? So can I say small amount of work done is force into small amount of displacement? अब ये displacement क्या है, जब ये पिस्टन इधर से इधर ऊपर की तरफ गया, that displacement is dx. याद करो, area of this piston was A. That means if I try to show you this diagram in 3 dimension, then the diagram should appear somewhat like this. The diagram should appear somewhat like this, that this is your cylinder, this is your gas cylinder, in which you have taken a gas, in which you have taken a gas. This is the block, this is the block. That means the gas is having the lower part to move freely. That means these are gas molecules. These are gas molecules. They can move freely in this volume. In this volume. And this is the piston. This is the piston. तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्लॉक. किसको, जिसको मैंने शेड किया है. Yes or no? So this block is of area A. मतलब ये स्क्वायर प्लेट हो सकता है या तो रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर. थोड़े टाइम के बाद जब ये हीट हुआ, राइट, तो ये ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया. दैट मींस नाउ दिस इज द न्यू वॉल्यूम अवेलेबल, राइट, फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव. तो ये कितना ऊपर गया, बाय द डिस्प्लेसमेंट dx. तो अभी थोड़ा गैस मॉलिक्यूल को ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा कि नहीं, फ्रीली मूव होने के लिए. दिस मच वॉल्यूम इट विल गेट एक्स्ट्रा, राइट. सो ये जो पोर्शन है ना ब्लैक और ग्रीन के बीच का, दैट इज कॉल्ड dv, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वॉल्यूम. मतलब अगर मैं ये नीचे वाला वॉल्यूम गिनूं, देन दैट इज v टोटल. if I start from the bottom and if I count up to black, that volume is v. If I start from bottom and if I go up to green, is it v plus dv? Common sense. Yes or no? Yes. Are you getting my point? बेटा हम लोग ये क्लासरूम में करेक्ट. वो डोर दिख रहा है उधर पीछे, एकदम पीछे, वो मेरा कनेक्टिंग ऑफिस है और वो डोर एक्चुअली ओपनेबल है. मींस इफ आई ओपन द स्टॉपर फ्रॉम देयर एंड इफ आई ओपन इट, तो यहाँ का जो एयर मॉलिक्यूल्स है, will they get more freedom to move, right? And in fact my cooling system will go down because now it will have to cool down more volume. Yes or no? So my compressors will have to work more, or else I will have to install more number of ACs. Logic समझा बेटा? Super sure, एकदम अच्छे से समझा ना. If dW is equal to F into dx, then do you agree with me? dW can be written as pressure into area into dx. You know that in physics, force is ma also and force is pa also. याद करो बेटा, याद करो. force is mass into acceleration भी करेक्ट है and force is pressure into area भी करेक्ट है. हम लोग थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं. That means we want pressure, volume and temperature. इसलिए मैंने मा वाला एक्सप्लेनेशन यूज नहीं किया, पा वाला एक्सप्लेनेशन यूज किया. So am I writing force as pa? Now what is area into displacement? Is it volume? Area means meter square, displacement means meter square and meter means meter cube. तो अगर मैं A into x लिखता तो वो वॉल्यूम होता. मैंने A into dx लिखा है, मतलब ये dv हुआ, चेंज इन वॉल्यूम हुआ. So what is my final most formula? Work done in heating a gas, keeping pressure constant and allowing volume to change. Keeping pressure constant and allowing volume to change is PdV. एकदम अच्छे से समझा. Before I proceed, just 1 minute. iPad notes page number
4 I think so. iPad notes पेज नंबर 4. राइट साइड में मिडल में एक छोटा सा प्रूफ है. बेटा सब लोग iPad notes ओपन नहीं करोगे चलेगा, खाली नेबर में से देख लो, खाली देख लो बस. Are you on page number 4 iPad notes? राइट साइड मिडल में एक छोटा सा प्रूफ है. देखो मिडल में एक छोटा सा प्रूफ है, उसमें मैंने कौन से डायग्राम ड्रॉ किए वो भी बोलता हूँ. इधर देखो इधर बेटा, मैंने फर्स्ट और थर्ड डायग्राम ड्रॉ किया. फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि सेकंड डायग्राम में वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है. सेकंड डायग्राम में वॉल्यूम सेम था. सेकंड डायग्राम में इधर देखो बेटा, इधर सेकंड डायग्राम में व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? 0. थर्ड डायग्राम में व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? नॉन जीरो. देन हाउ मच इट इज? इज इट a into dx? बस वही एक्सप्लेन किया है मैंने. मेयर्स रिलेशन प्रूव करने से पहले, मेयर्स रिलेशन इज ऑन पेज नंबर 5 राइट साइड कंप्लीट, जो मैं प्रूव कर रहा हूं अभी. राइट साइड कंप्लीट चेक करो. डू यू सी दिस 3 डायग्राम थे? वो प्रूव करने से पहले यू शुड नो दिस. वर्क डन इज PDV. कम बैक टू पेज नंबर 4 प्लीज. कम बैक टू पेज नंबर 4 प्लीज. Sir, in the diagram dx is that. So Come again. In the diagram dx is that. So what is dx is the displacement. and dv will be the total. Change in the volume. That dx and ये एरिया है बेटा, ये एरिया है. हाँ इधर देखो, सब लोग इधर देखो. लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल. यू गिव मी अ वाटर बॉटल प्लीज. Transparent. So Yes, that one will be better. ये मैंने जितना पानी पिया वो डीवी था. मतलब बेटा ये लेवल वॉल्यूम ऑफ द गैस है, राइट. अब अगर मैं इसको हीट करता हूं, हीट, तो ये इधर से शिफ्ट होके इधर जाता है. तो ये जो आपको टॉप मोस्ट सरफेस एरिया दिख रहा है ना, दैट इज द एरिया ऑफ द ब्लॉक. मान लो इधर एक हैंडल होता, राइट. अब जैसे आप कोई सिंक या कुछ तो क्लीन करते हो, वैक्यूम पंप से क्लीन करते हो, याद है, तो हैंडल पकड़ते हो. सो दिस वॉल्यूम विल गो अप. वॉल्यूम इन द सेंस the block will move up because of the increment in the volume. तो ये जो फिलहाल ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम बढ़ के इतना हो जाएगा, इतना. सो व्हाट विल बी दिस? चेंज इन वॉल्यूम. अभी जितना मैंने पानी पिया था ना, मतलब वो ओरिजिनल लेवल था. अभी मैंने पानी पी लिया तो दैट इज रिडक्शन इन द वॉल्यूम. दिस विल बी इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम. अभी समझा? सुपर श्योर, एकदम अच्छे से. बिकॉज सी फ्रेंकली स्पीकिंग, व्हेन वी ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस इज 2 डायमेंशनल व्यू and this is 3 dimensional view. So what is the area of this black shaded portion? A. By how much this is moving up? Dx. So what is A into dx? The volume between the black portion and the green portion. Is it the increment in the volume? Yes or no? So V ki dV. V ki dV. D. Correct? Now work done का फॉर्मूला हम लोगों को स्कूल से मालूम है. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी कॉलेज में दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. सी वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. देन कैन आई से दिस फोर्स मींस प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट. एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम. देयरफॉर एरिया इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन वॉल्यूम. यहां तक समझा? सुपर श्योर. आप अभी कंफर्म करो कि इसका यूनिट क्या आता है. आप अभी कंफर्म करो इसका यूनिट क्या आता है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क का यूनिट क्या था? Was it Newton into meter? Newton into meter, which was equivalent to joule. Yes or no? अभी प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इनटू वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब. आ गया न्यूटन मीटर. कैन आई से ओ लवली? अच्छे से समझा? दैट मीन्स डायमेंशनली these 2 formula are the same. Dimensionally, first formula and the end result are the same. अच्छे से समझा? Sure? अभी इधर आ जाओ, अभी इधर आ जाओ. Are you keeping volume constant here? So when you go from first diagram to second diagram, what is the change in the volume? 0. मतलब यहाँ पे work done against external pressure हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये पिस्टन ऊपर गया ही नहीं है. दैट मींस द एनर्जी सप्लाइड बाय यू इज लाइक योर इनकम
which is taking care of your monthly expenses. You are not earning anything extra for your savings. You are not earning anything extra for your luxuries. अगर मेरा घर का खर्चा 50,000 है तो मेरा मंथली इनकम भी 50,000 ही है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बचता ही नहीं है, राइट? मुझे मूवी देखने जाना है, मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, मुझे बाइक खरीदना है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं है. बट इफ आई एम अर्निंग 70,000 and if I manage my monthly expenses like 50,000 only, that means every month I can save 20,000 and I can do the yearly planning. Okay, at the end of the year I will save 2,40,000, so I can buy something which I want. Yes or no? मतलब यहाँ पे change in volume is zero. आपने क्या बोला है टाइटल में, क्या बोला है? Volume is constant. So what can you say about change in volume? Zero. If change in volume is zero, इसका मतलब आपका सेकेंड आंसर आएगा ही नहीं. So what is your first answer? What is your first answer? What is DQV? Is it DU? Yes or no? Let us call this as equation 2. DQV was NCV dt. DQV is DU also. That means from 1 and 2. Will I say left hand sides are same, so right hand sides must be same. So du, या तो मैं इसको de भी लिख लेता हूँ, internal energy. Is it NCV dt? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो एनर्जी था वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी के लिए था, मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी था ही नहीं. Yes or no? I am going from diagram 1 to diagram 2 and I am getting this mathematical result. I am coming back to diagram 1. तो उसके लिए क्या करने का? वो जो बर्नर है ना वो निकाल देने का, या तो switch off the burner. So when you switch off the burner, are you back from temperature T plus dt to T? Yes or no? Now when you hit the gas, keep pressure constant, allow volume to change. Is that clear? So how will you write the mathematics now? Case 2. Are you going from first diagram to third diagram? So what are you keeping constant? You are keeping pressure constant. Yes or no? So how will you write the formula? यहाँ का step 1 देखो और मुझे बताओ क्या लिखोगे. यहाँ का step 1 देखो और बोलो क्या लिखोगे. This was DQB, therefore it was NCV. What is this? DQP, therefore NCP dt. Yes or no? This was equation 1. This is equation 2. From 1 and 2, let me call this as equation 3. So let us call this as equation 4. ये first आ गया, right? Again, according to Clausius law. Step same छापना है बेटा. Again, according to Clausius law, what will you write? DQP is equal to du plus dw. So what is DQP? What is DQP? NCP dt. From where? Equation 4 is equal to, what is du? NCV dt. Oh lovely. Du is equal to NCV dt. Yes or no? From equation 3. And what is dw? What is dw? PdV. Yes or no? From where? From the hash. प्रूव किया मैंने एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द बोर्ड पे. आपके आईपैड नोट्स में मेयर्स रिलेशन पे जाने से पहले पेज नंबर 4 पे पहले मैंने ये प्रूव किया कि डीडब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी कैसे आता है, और उसके बाद में मेयर्स रिलेशन पे गया. इज इट वेरी वेरी क्लियर? बस वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स आवर फाइनल स्टेप नाउ. वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स आवर फाइनल स्टेप. प्लीज मुझे बताओ ये स्टेप समझा सबको? ये स्टेप समझा सबको? DQP is equal to DU plus DW, right? रुपेश जल्दी किसका लेक्चर है? हाँ? ये देखो बोर्ड जल्दी, और मुझे आउटलाइन का पेन दो. तो चालू लेक्चर में सब नहीं होना चाहिए, रिकॉर्डिंग चालू जल्दी कर. So DQP
is equal to du plus dw. Right? So dqp is equal to ncp dt. du is equal to de is equal to ncv dt from the previous article. And dw is equal to pdv. ये डायग्राम में pdv 0 था. ये डायग्राम में pdv 0 नहीं है. ये डायग्राम में एक्सटर्नल वर्क हुआ ही नहीं था. That means your income was just sufficient enough to take care of your monthly expenses. But now your income is enough for monthly expenses also plus some extra saving. That means you have extra income. Yes or no? एकदम अच्छे से समझा. This was equation 4. Let me call this as equation 5. Let me call this as equation 5. क्यों मंगाया उसके पास, उदय के पास? क्यों मंगाया? देखने के लिए ना कि ये पेन का स्टेन रह जाता तो उसका रहता है कि नहीं. कमलेश सर ने जो भी बोला उससे मुझे मत सुनाओ सुबह सुबह. पहले क्या बोलते? Now, very important and very easy also. Do we know PV is equal to nRT? Yes or no? So can I say P into dV should be nR into dt? सोचो. वॉल्यूम किसकी वजह से चेंज हुआ? टेम्परेचर के इंक्रीमेंट की वजह से चेंज हुआ. आपने टेम्परेचर को T से T प्लस dt किया, इसलिए वॉल्यूम V से V प्लस dV हुआ. I repeat, आपने टेम्परेचर. Where are you? Are you on diagram number 2? I mean case 2. Are you on case 2? Right? So are you going from first diagram to third diagram? आपने फर्स्ट डायग्राम से थर्ड डायग्राम जाने के लिए क्या किया? हीट सप्लाई किया. टेम्परेचर बढ़ा T प्लस dt. प्रेशर बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा, इसलिए उसको सेम रखा. वॉल्यूम बढ़ा क्या? बढ़ा, इसलिए उसको dV लिखा. किसकी वजह से बढ़ा? टेम्परेचर की वजह से. R is anyways universal gas constant, so cannot change. Number of moles also cannot change. So can I say PdV is equal to nR dt? Let me call this as equation 6. And this equation 6 you can substitute here. And you get your final answer. So what is your answer now? Substituting equation 6 in equation 5. In equation 5 we get ncp dt is equal to ncv dt plus nR dt plus nR dt. ncp dt as it is, ncv dt as it is. pdv की जगह पे मैं nR dt सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. एडवांटेज આવજો. another advantage તમે પણ આવજો. Oh lovely. cp is equal to cv plus r. बड़ा cp is equal to बड़ा cv plus बड़ा r. तो cp is greater than cv by what value? R. cp is greater than cv by what value? R. So we get the first result. cp minus cv is equal to r. तो ये बेटा कौन सा हुआ? मेयर्स रिलेशन. दिस इज द टाइटल. पहले ये डिसाइड करने का कि मोलार स्पेसिफिक हीट कि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. मोलार स्पेसिफिक हीट. मोलार स्पेसिफिक हीट. तू नहीं दिख रही है वीडियो में, डोंट वरी. तुझे तो बुला क्यों नहीं? यार बहुत आ रहा है अभी मूवी में, मेरे से ज्यादा आ रहा है. हाँ, मोला बड़ा सीरीज है. सो दिस इज मोला. अच्छा, हीट यूनिट में कि वर्क यूनिट में? इसको मैंने जे से डिवाइड किया है कि नहीं किया है? जे से नहीं डिवाइड किया मतलब जे है. जे है. सो इज इट मैकेनिकल यूनिट्स? राइट. बस ये एक रिलेशन है, उसके ऊपर से बाकी का 5 लाना है. मतलब टोटली देयर आर 6 वेज ऑफ राइटिंग मेयर्स रिलेशन. देयर आर 6 वेज ऑफ राइटिंग मेयर्स रिलेशन. अदर forms of Mayer's relation. Mind you, this is Mayer's relation. This is the title. This is the title. That means this is Mayer's relation. In which system? Molar की principle? Molar. Right?
मैकेनिकल यूनिट की थर्मल यूनिट, क्योंकि आपने जे से डिवाइड नहीं किया है। अगर मैं ऐसे लिखूं बड़ा सीपी माइनस बड़ा सीवी इज बड़ा आर अपॉन बड़ा जे, अभी जे से डिवाइड किया तो ये कौन सा सिस्टम हुआ? मोलार एंड थर्मल, मोलार एंड थर्मल, बराबर। नाउ कॉमन सेंस अप्लाई करो, नाउ कॉमन सेंस अप्लाई करो। बड़ा सीपी कैन बी रिटन एज m टाइम्स छोटा सीपी, बड़ा सीवी कैन बी रिटन एज m टाइम्स छोटा सीवी, इस बड़ा कैन बी रिटन एज m टाइम्स छोटा r, छोटा बिकम बड़ा गेटिंग सपोर्ट ऑफ बड़ा, छोटा बिकम बड़ा गेटिंग सपोर्ट ऑफ बड़ा। काफी सालों पहले की बात है। पेज नंबर 4 लेफ्ट साइड, पेज नंबर 5 लेफ्ट साइड, सॉरी पेज नंबर 5 लेफ्ट साइड। एवरीबॉडी हियर, ये था कि नहीं? देखो, स्मॉल सी बिकम्स बिग सी गेटिंग सपोर्ट ऑफ बिग एन, स्मॉल सी बिकम्स बिग सी गेटिंग सपोर्ट ऑफ बिग एन, स्मॉल आर बिकम बिग आर गेटिंग सपोर्ट ऑफ बिग एन, सीपी सीपी सीवी सी। समझा? तो बड़ा सीपी इज m टाइम्स छोटा सीपी, बड़ा सीरीज m टाइम्स छोटा सीरीज। ये mr जो है ना, मैंने यहां से लिखा है, यहां से, राइट? अभी तक j से डिवाइड नहीं किया है मैंने, मतलब मैंने ये लिखा, ये समझा? मैंने ये रिलेशन लिखा, करेक्ट? m बॉन्ड कितना क्यूट है, याद रखना। बड़ा सीपी माइनस बड़ा सीवी बस बड़ा आर, देयरफॉर छोटा सीपी माइनस छोटा सीवी इज छोटा आर, सिंपल, राइट? एंड व्हाट इज छोटा आर? इज इट बड़ा आर अपॉन बड़ा एम? सोच के बोलना, ये किस में हुआ? मोलार में कि प्रिंसिपल में? वेरी गुड। जैसे डिवाइड किया है कि नहीं किया है? तो मैकेनिकल की थर्मल? प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। मैकेनिकल प्रिंसिपल की मोलार? प्रिंसिपल। साइज पे नहीं जाने का, साइज पे नहीं जाने का, बिकॉज बड़ा सी एंड छोटा सी लुक द सेम, बड़ा एस एंड छोटा एस लुक द सेम। तो ये बाजू बाजू में, इसलिए समझ में आ रहा है कि ये छोटा सी है बड़ा सी है, बराबर। लेकिन सफिक्स डाल दिया तो छोटा बिकम बड़ा गेटिंग सपोर्ट ऑफ फर्दर छोटा, दिस इज छोटा सी। बट जब इसको मैंने सफिक्स लगाया ना p, तो दिस लुक्स बड़ा सी, दैट मींस दिस इज प्रिंसिपल एक्चुअली, बट इट मे मिसगाइड यू एंड यू मे मिसअंडरस्टैंड दिस एज मोलार। लॉजिक समझा? सो छोटा सीपी माइनस छोटा सीवी इज छोटा आर, या तो बड़ा आर अपन बड़ा है। बोलो ये किस में? मोलार में कि प्रिंसिपल में? 1 by 1 प्रिंसिपल, प्राउड ऑफ यू। मैकेनिकल की थर्मल? वेरी गुड। थर्मल में लाने के लिए क्या करने का? कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, खाली जे से डिवाइड करने का। सो छोटा सीपी माइनस छोटा सीवी इज छोटा आर बाई जे, या तो बड़ा आर अपॉन बड़ा एम टाइम्स जे। यस और नो? रिलेशन 1, रिलेशन 2, ओके, रिलेशन 3, रिलेशन 4। यहाँ तक जो सब कुछ प्रूव किया, समझा सबको? यस और नो? यस और नो? नाउ टू मोर। PV is equal to nRT. Yes or no? What is the meaning of PV equal to nRT? PV is equal to mass of the gas upon molecular weight times RT. याद है सबको? What is the meaning of छोटा n? It is mass of the gas upon molecular weight. So can I say P is equal to small m बड़ा r बड़ा t upon mv? तो पहले मैं v लिख रहा हूँ, बाद में m लिख रहा हूँ। हाँ, ध्यान से देखो बेटा, मालूम है आप लोगों को। What is mass of the gas upon volume of the gas? Very good, proud of you. What is बड़ा r upon बड़ा m? Small r. Yes, very good. बड़ा r upon बड़ा m is small r. Very good. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्रेशर का नया रिलेशन मिला। And what is that? Rho r t. Rho छोटा r t. And therefore मुझे छोटा r का रिलेशन मिला। What is छोटा r? P by rho t. P by rho t. इसका मतलब मैं इसको लिख सकता था P by rho t, और इसको मैं लिख सकता था P by rho t की जय। समझा? तो मेरे पास एक ही रिलेशन था, मेन रिलेशन एक ही था, ये वाला। बड़ा सीपी माइनस बड़ा सीरीज बड़ा, बाद में कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा।
बड़ा CP माइनस बड़ा CV is बड़ा R. Therefore छोटा CP माइनस छोटा CV is छोटा R. बड़ा CP माइनस बड़ा CV is बड़ा R is molar mechanical. छोटा CP माइनस छोटा CV is छोटा R is principal mechanical. बड़ा CP माइनस बड़ा CV is बड़ा R upon J. J से डिवाइड किया, J से डिवाइड किया, J जाओ, right? Can I say it is molar thermal? छोटा CP माइनस छोटा CV is छोटा R upon J. Principal thermal. छोटा R can also be written as P by rho T. So wherever you see छोटा R, you can write this as P by rho T. And this was R by J, so P by rho T is J. Right? लॉजिक समझा सबको? एकदम अच्छे से समझा? शॉर्ट. फिजिक्स में रोजी रोटी सब आता है. रोजी किधर आता है देखो बोलता हूँ. स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, याद करो, प्रूव किया था. राइट? फोर्स इज mg, yes or no, upon area. Mass is density into volume into gravity upon area. Volume is area into length. So volume is area into length into gravity upon area. Area गया. So stress is rho Lg, and therefore length of the wire is stress upon rho G. Rho G, roti. Bread butter. मैं अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करता हूँ. लॉजिक समझा? ये भी बेटा फिजिक्स का पॉपुलर फॉर्मूला है, बाद में आने वाला है. प्लीज लेट मी नो. मेयर्स रिलेशन समझा? Without looking at the board, honestly, 6 relations. बड़ा CP माइनस बड़ा CV is बड़ा R. बड़ा CP माइनस बड़ा CV is बड़ा R upon J. छोटा CP माइनस छोटा CV is छोटा R. छोटा CP माइनस छोटा CV is छोटा R upon बड़ा. छोटा CP माइनस छोटा CV is P by root. छोटा CP माइनस छोटा CV is P by root की जगह. बड़ा C में 2 फॉर्मूले हैं, 1 and 2, और छोटा में 4 है. 1 2 3 4. समझा सबको? सुपर डुपर श्योर. तो अभी हम लोगों को सिर्फ ये नहीं मालूम है कि वाई CP इज ग्रेटर देन CV. हमको ये भी मालूम है कि CP इज ग्रेटर देन CV बाय व्हाट वैल्यू. CP इज ग्रेटर देन CV बाय व्हाट वैल्यू. वी नो दैट आल्सो. वेरी ब्यूटीफुली गिवन इन योर iPad notes, पेज नंबर 5, राइट साइड. चलो बेटा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Done? Let me check your theory notes. Please go back to theory notes, page number 10 and 11. Book.
theory notes, page number 10 and 11. Page number 10. Question number 13, 14, 15 all done. Page number 11. Question number 16, 17 done. बराबर. Page number 12. Question number 18 just now done. और इसमें सिर्फ इतना प्रूव किया है कि एक्सटर्नल वर्क डन इज पीडी, राइट. उधर आप है ना, इधर ब्लैंक स्पेस है, इधर देखो, इधर ब्लैंक स्पेस है. फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ, लिखो, फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ why CP is greater than CV, for detailed explanation of why CP is greater than CV and Mayer's relation, for detailed explanation of why CP is greater than CV and Mayer's relation in different forms, refer iPad notes, page numbers 4 and 5. Page numbers 4 and 5. मतलब लास्ट टाइम हमको सिर्फ इतना पता था कि CP is always greater than CV, but now we also know CP is greater than CV by what amount. आगे याद करो, अगर इनको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछना है, ध्यान से सुनो. Do we know this? Gamma is equal to बड़ा CP अपन बड़ा CV, या तो छोटा CP अपन छोटा CV. What was this? Adiabatic ratio. इसका मतलब जिधर बड़ा CP दिखता है उधर वो लोग गामा टाइम्स CV लिख सकते हैं, एंड जिधर छोटा CP दिखता है उधर वो लोग गामा टाइम्स छोटा CV लिख सकते हैं. और ये पूरा का पूरा मेयर्स रिलेशन वापस लिखा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही लिख के बताता हूँ. बड़ा CP माइनस बड़ा CV इज बड़ा, राइट. सो बड़ा CP माइनस बड़ा CV इज बड़ा R, कैन बी रिटन एज गामा टाइम्स बड़ा CV माइनस CV इज इक्वल टू R. इसका मतलब CV कॉमन, इज इट गामा माइनस 1 टाइम्स R. सो कैन आई से CV इज R अपॉन गामा माइनस 1 ऑल्सो. सोचो. और बेटा अगर ये CV है तो फिर CP कितना हुआ? CP is gamma times CV, और CV मुझे अभी मिला. So is it gamma times R upon gamma minus 1? Yes or no? तो ये भी Mayer's relation लिखने का स्टाइल है, right? That means you can find out CP and CV in terms of gamma like this. In terms of gamma like this. This is CV. ये समझा? CP is gamma times CV. So it is gamma times जो मुझे यहाँ पे मिला था. ये बेटा 12th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले प्रूव किए मैंने. ये काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में आता है. हीट 1 हीट 2 तो अभी से मैंने सिखा दिया. तो बाई चांस मैं हीट 2 लेता हूँ या तो और कोई टीचर हीट 2 लेता है, आपको ये अभी से पता है. माई सजेशन इज iPad नोट्स पेज नंबर 5. राइट साइड पे पूरा मेयर्स रिलेशन है. आई एम श्योर बॉटम पे थोड़ा तो जगह बचा होगा, तो बेटा यहाँ से शुरू करो. थोड़ा स्मॉल हैंड राइटिंग में यहाँ से शुरू करो. ये पार्ट कॉपी करो. It comes in the chapter kinetic theory of gases. Sorry? क्या हुआ? Very good. आपका मेहनत बचा, मेरा भी मेहनत बचा. वेरी गुड. ऑलरेडी लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे. थैंक यू सो मच. कुछ नहीं समझा बेटा? नहीं समझा ऐसा कुछ है? श्योर. ये पार्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं. थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉइंग माई अटेंशन. इट इज ऑलरेडी देयर ऑन पेज 6. प्लीज चेक. इट इज ऑलरेडी देयर ऑन पेज 6. मैं सिर्फ वापिस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वो बोर्ड वर्क का पिक्चर लेना है. आप लोग प्लीज कंटिन्यू करो. पेज नंबर 6 पे ये ऑलरेडी दिया हुआ है. रीड करो प्लीज. पेज नंबर 6 पे ये ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट. तो उधर लिख के रखो. और कम करना कर ले, बाद में बंद कर, बढ़ा देना, गर्मी लगती है तो.
Okay, please continue. If they want to ask NEET section B में question on this, then they will prefer this. Okay? So please revise that part. तब तक मैं ये कॉपी करता हूँ, मैं वापस लिखता हूँ because I want to take the picture. Please continue. Page number 6 continue करो please. अरे बस कर यार, 27 करेगा क्या? फायदा क्या फिर इसी रूम में बैठने का? विंडो खोल देते हैं, उतना टेम्परेचर बाहर भी है. So do you agree with me, students? CP is always greater than CV. And have you understood all possible combinations of writing Mayer's relation? Please let me know. Are you done with page number 6 also? Please let me know. Are you done with page number 6 also? Right? So with this Mayer's relation is over. With this latent heat is over. Specific heat is over. Now. One very simple and very important formula. W is equal to JQ या तो JH. We know this or no? वर्क डन के बेटा दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. वन इज हाफ mv स्क्वायर और या तो फिर mgh इज इक्वल टू J टाइम्स Q के भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. या तो ml या तो mc थीटा. What do I mean by this? Listen to the examples one by one. I am firing a bullet and it is passing through piece of wood. So when this bullet is just hitting the target, the bullet will be trapped inside somewhere. Yes or no? So here the work done is kinetic energy of the bullet, half mv square. And some portion of the wood will be damaged. Now imagine this was a metal block. So some portion of the metal will melt. Why it will melt? Because work done will be converted into heat and that heat will be sufficient enough to reach the melting point. If it is not melting, then can I say the block will be pushed. It will be moving in a higher direction or the block will be heated up. See, when the bullet is hitting your body, why it is very harmful? Reason, mass of the bullet is very less. It is hardly 10 to 15 gram. But the velocity with which the bullet moves is normally more than speed of sound also. Speed of sound is about 330, but the bullet normally is about 350 meters per second, 400 meters per second, depending on the type of the revolver. Are you getting this? How fantastic that revolver is. If you use something like AK-47, AK-56, that means the hitting bullet power is too much. Are you getting this? So work done can be written as half mv square या तो mgh. प्रॉब्लम में अगर उन्होंने ये बोला कि द वेलोसिटी विथ द बुलेट इज मूविंग इज सो एंड सो, कॉमन सेंस अप्लाई करने का कि वर्क डन की जगह पे हाफ mv स्क्वायर यूज करना है. mgh कब यूज करना है? A block of ice of 100 gram is falling from a height of 500 meter and it strikes the ground, right? Then what happens at the ground? Now at the ground either it will melt or it is about to melt or it will explode, it will be broken into pieces. Yes or no? So work done के दो तरीके हैं, either half mv square or mgh. J as it is because J is a conversion factor, right? ये दो पार्ट में यूज होता है, मास इंटू लेटेंट हीट या तो m इंटू c इंटू थीटा.
if the thing melts, right? If there is change of state, then you use ml, and there is change of temperature, then you use mc theta. Yes or no? Very, very, very popular questions, MCQs. Come on this. Very, very popular MCQs come on this. Work done can be either half mv square or else it is mgh, and h की जगह पे या तो q की जगह पे या तो ml या तो mc theta. So somewhere at the bottom of page number 4 या तो 5, wherever you find place. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन से पेज पे था? फोर्थ पेज पे था. इधर बॉटम पे आपके पास इनफ जगह है. हाँ, पहले लिखने का W इज इक्वल टू JQ या तो JH. वर्क डन लिखने के दो तरीके हैं, हाफ mv स्क्वायर या तो mgh, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम इज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कि द प्रॉब्लम इज इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ऑफ द बॉडी, राइट? एंड h की जगह पे या तो q की जगह पे अगेन देयर आर टू थिंग्स, आइदर इट इज ml या तो इट इज mc थीटा. When you write half mv square, that means work is done in the form of kinetic energy. When you write mgh, that means work is done in the form of potential energy. When you write ml, that means this is change of state. And when you write mc theta, that means this is change of temperature. We are going to do some very, very good MCQs on this. Very good MCQs. Done? Now, let us get back to assignment number 3. Practice paper 4 has gone for printing. Okay? So before your lecture is over, you will get that practice paper ka solution. Correct? Like we always do, you go through your doubts. अगर उसके बावजूद कुछ नहीं समझा, then we will discuss it on Wednesday. This weekend is a physics weekend. So this Wednesday I will be taking DCT. But DCT I will be taking at the end of the lecture. 7 to 8:15 lecture, then 8:15 to 8:30 DCT. So before starting with the DCT, I will solve all your doubts. Are we on assignment number 3, please? कल मैंने आपके पेरेंट्स ग्रुप पे एक मैसेज भेजा था और उसने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए थे. ये मैंने लास्ट टाइम बोर्ड पे नहीं लिखा था 39 to 44, लेकिन मुझे लगा वो आप कर सकते हो अभी. आई मीन वो टाइप इंट्रोड्यूस हो चुका है. Shall we start? Are we on assignment number 3? Question number 13. Easy beta, very easy. Should the answer be A? Molar specific heat is molecular weight times principal specific heat. Answer is A. Correct? 14th बोला नहीं था मैंने, आज ही मेयर्स रिलेशन प्रूव किया है. 30 seconds for you. I am sure you will be able to crack this. I am sure you will be able to crack this. Very good बेटा, very good, very good. है ना? मेयर्स रिलेशन अभी जस्ट ताजा किया है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा इजी. हाँ, सो आई एम डूइंग दिस क्वेश्चंस आल्सो टुडे. जो क्वेश्चन हो सकता है आपने से वो मैं इधर लिख रहा हूँ. 14th डन. आर यू गेटिंग द आंसर दिल्ली? Yes or no? CP is greater than CV is correct. CP minus CV is R also is correct. CP upon CV is gamma is also correct. Adiabatic ratio. CP dt लास्ट स्टेटमेंट करेक्ट कब होता? जब नहीं जब प्लस और इक्वल टू का साइन इंटरचेंज कर देते. बिकॉज एन तो बेटा 1 मोल भी ले सकते हैं, एन तो 1 मोल भी ले सकते हैं. ये जो एन CP dt एन CV dt प्लस PdV है, ये वाला स्टेप देखो. चलो, एन CP dt इज एन CV dt प्लस dW. एन को मैंने 1 मोल लिया तो CP dt इज CV dt प्लस dW. मतलब प्लस साइन और इक्वल टू का साइन अगर इंटरचेंज हो जाता तो दिल्ली भी करेक्ट था. वो क्यों रॉन्ग है समझा?
आर वी ऑन क्वेश्चन नंबर 15? चलो बेटा कर सकते हैं आराम से, 30 सेकेंड्स फॉर यू। 30 सेकेंड्स भी शायद ज्यादा ही है, चल कर। इन हीट यूनिट्स मतलब आपको जे से डिवाइड करना है। इन हीट यूनिट्स मतलब आपको जे से डिवाइड करना है। यस और नो? मतलब आपका आंसर बी या तो सी हो सकता था। सी रॉन्ग है, बिकॉज सी क्या होना चाहिए, छोटा सीपी माइनस छोटा सीवी बड़ा आर अपॉन बड़ा एम टाइम्स जी। सी रॉन्ग क्यों है? बिकॉज इट शुड हैव बीन छोटा सीपी माइनस छोटा सीवी बड़ा आर अपॉन बड़ा एम टाइम्स जी। उन्होंने छोटा सीपी के बदले बड़ा सीवी दिया है, और बड़ा एम के बदले छोटा एम दिया, तो रॉन्ग है। राइट आंसर इज बॉम्बे। पहले तो ये डिसाइड करने का, हीट यूनिट्स मतलब मुझे जे से डिवाइड करना है, एंड वर्क यूनिट मतलब मुझे जे से डिवाइड नहीं करना है। आई एम श्योर बेटा 16th भी कर सकते हो। चलो प्राउड ऑफ यू। सॉरी, क्या आंसर आएगा 16th का आंसर? 16 सी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली किसने बोला? आर इंटू जे करके तो कुछ है ही नहीं। आर इंटू जे क्या होता है? आर इंटू डी बोली मैं दिल्ली, आर बाय एम है। तो फिर दो आंसर करेक्ट हुआ। द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज, तो सी और डी दोनों करेक्ट हुआ फिर, क्योंकि उन्होंने थर्मल यूनिट्स मैकेनिकल यूनिट्स बोला नहीं है, तो दोनों आंसर्स करेक्ट हुआ। एक मिनट, सी कौन से यूनिट्स में करेक्ट हुआ? जैसे डिवाइड किया है, करेक्ट, हीट यूनिट्स। और डी किस में करेक्ट हुआ? वेरी गुड, लिखो दोनों आंसर्स करेक्ट है। सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। सी के ब्रैकेट में लिखो इन हीट यूनिट्स, जैसे डिवाइड किया है ना उसमें, इन हीट यूनिट्स, और लास्ट वाला लिखो इन वर्क यूनिट्स, मतलब दोनों करेक्ट है। गिव मी रेड पेन प्लीज, रेड पेन। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन हीट यूनिट्स एंड ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन वर्क यूनिट्स, मतलब सी और डी दोनों करेक्ट है। अच्छा 17 मैंने बोला था करने को। 17th आंसर इज दिल्ली। Why? If the temperature of the gas is decreasing, then the specific heat. मस्त क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से समझना है बेटा। तो 21st क्वेश्चन देखो। 21st क्वेश्चन में आपने आंसर टेम्परेचर दिया था क्या? नहीं दिया था। अभी क्यों नहीं दिया था? ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। C is equal to dq upon mdt। उन्होंने क्या बोला है? टेम्परेचर कम हो रहा है। If temperature increases, that means heat must have increased. If temperature decreases, that means heat must have decreased. That means the ratio dq by dt is constant. सोचो, टेम्परेचर कम हुआ तो अपने आप तो कम नहीं होगा ना, साथ में हीट भी कम हुआ होगा। फैंटास्टिक क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में नॉर्मली स्टूडेंट्स रॉन्ग जाते हैं। क्यों मालूम है? वो लोग सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं, और फॉर्मूला देख के ये बोलते हैं कि सर दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लॉजिक समझा? रॉन्ग क्यों गए? अगर बेटा टेम्परेचर कम हो रहा है तो सामने क्यू भी कम हुआ होगा। इनफैक्ट इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन सुनो। सप्लाइड हीट डिपेंड्स ऑन मास and supplied heat depends on temperature also. So supplied heat depends on mass and temperature. So to remove the proportionality sign, we assign some constant. हम लोग इसको constant of proportionality बोलते थे। So best argument क्या होगा बेटा? 17 के लिए दो arguments लिखो। Also refer 21, ऐसे लिखो। Also refer 21, ये एक argument होगा। आपने 21 में देखो क्या आंसर मार्क किया है। स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। कॉपर का स्पेसिफिक हीट अलग होता है, आइस का स्पेसिफिक हीट अलग होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट अलग होता है। ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। दूसरा आर्ग्यूमेंट बेटा ये हो गया, ये हो गया C इज इक्वल टू dq अपॉन mdt। आपका फोकस सिर्फ dt पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस dq पे भी होना चाहिए। सो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट भी बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो हीट भी कम होता है, एंड देयरफॉर द रेशियो dq अपॉन dt इज कांस्टेंट, and therefore specific heat is not affected by temperature. Awesome question, awesome. खोपड़ी रेस टू 5 मार्क करते हो। इसमें स्टूडेंट 99% of the students go wrong. Reason? They look at the formula. समझ में आ रहा है? फॉर्मूला मालूम होने के बावजूद भी आप रॉन्ग जा सकते हो।
पेरेंट्स आके बोलते मुझे सर मेरा बच्चा सब फॉर्मूले पढ़ के जाता है, मुझे टेकअप भी देता है, वाइवा भी देता है, 3-4 बार फॉर्मूले लिख के प्रैक्टिस करता है। चलो लिख के प्रैक्टिस किया, क्या कर लिया, फिर भी रॉन्ग है। बिकॉज पावरफुल कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग भी चाहिए। इसमें जो स्टूडेंट को फॉर्मूला मालूम है उसको तो लगेगा ना यार मेरा फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, तो फिर इसमें कैसे रॉन्ग जा सकते हैं। रीजन, यू फोकस ओनली ऑन dt, यू शुड फोकस ऑन अदर पैरामीटर्स ऑल्सो कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से और क्या क्या चेंज होता है और उसकी वजह से कौन कांस्टेंट रहता है। लॉजिक समझा? श्योर? मस्त क्वेश्चन था। कौन सा था? 17th। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। खोपड़ी मार्क किया बेटा सबने? 17 में लिखा, रिफर 21 ऑल्सो। लेट मी चेक 18, कैन वी डू 18th? पहले ही बोला था। हो चुका है? ओके 19th हो चुका है। 20 आया बेटा कि हेल्प करूं? Q इज MC थीटा, 4 में से 3 दिया है। Q इज इक्वल टू MC थीटा, मास दिया है 6, हीट दिया है 72, टेम्परेचर डिफरेंस दिया है 10, स्पेसिफिक हीट आएगा 1.2। आया सबको? DQ इज इक्वल टू MC d थीटा, DQ इज इक्वल टू MC d थीटा। 21 अपना हो चुका था। 22 चलो बेटा इजी, छोटा बिकम बड़ा, गेटिंग सपोर्ट ऑफ बड़ा। से काम करो ना 13th में, हाँ 13th में लिखो सॉल्व 22, 13th में लिखो सॉल्व 22, बराबर ना? अरे वापिस दे दूंगा क्या, सीधा कंपास बॉक्स में रख देती है। हाँ सर लेके जाएगा क्या पेन? 50 है मेरे पास, डोंट प्लीज बैड, फील वेरी बैड। 13th में लिखो सॉल्व 22। चलो बेटा 23 अपना हो गया था कि नहीं? ऑसम क्वेश्चन, ऑसम, मस्त। बोलो, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉइलिंग वाटर। बी, वेरी गुड। व्हाई? Because d delta, dt will be 0. So for Very it to come in good, around- very good. The most important word was boiling water. Because it is boiling water, is it change of state? That means no change of temperature. Now no change of temperature, that means C, which is dq upon m dt, dt is 0. लिखो बेटा, आर्ग्यूमेंट लिखो, बॉइलिंग वाटर अंडरलाइन करो, आर्ग्यूमेंट लिखो। Since boiling water, therefore state is changing. Since boiling water, therefore state is changing. Therefore temperature is not changing. Therefore temperature is not changing. Next sentence. Now C is equal to dq upon m dt. C is equal to dq upon m dt. So it is equal to dq upon m zeros are. Therefore your answer is infinity. Because temperature is not changing, no? Must the question. अब इसमें लोग चेंज करके क्या पूछते मालूम है? What is specific heat of melting ice? Same answer. What is specific heat of melting ice? So when ice is melting, that means it is change of. तो एक छोटा सा नोट लिख के रखो इसके बाद. Similar question can be asked as. Similar question can be asked as. What is specific heat of melting ice? Similar question can be asked as. What is specific heat of melting ice? समझा बेटा? 24th अपना हो चुका था, 25th मैंने बोला नहीं है, 25th होल्ड पे रखो, 25th होल्ड पे रखो, थैंक्स। 26, 24 बाकी है, ये बैच क्यों बाकी है? इजी है बेटा, पता नहीं क्यों बाकी रखा, एकदम इजी है। थर्मल कैपेसिटी एम इनटू सी। हाँ अरे वो थी नहीं ना लास्ट टाइम, एब्सेंट थी इसलिए नहीं हुआ है ना? स्तुति तो थी नहीं ना इसलिए नहीं हुआ है, बराबर। तुम लोग थे ना क्लास में तो तुम्हारे लिए हुआ है, उसके लिए नहीं हुआ है। डोंट फील बैड। मैंने किधर बोला? मेरे डायलॉग्स मार के कॉपीराइट सीधा केस कर दूंगा तेरे पे। ओके 26th इजी है बेटा, एकदम इजी है। For n moles of an ideal gas, the increase in internal energy per unit rise in temperature. इधर देखो, इधर देखो, dq is equal to n cv dt. Unit rise in temperature मतलब ये 1 केल्विन है।
Unit rising temperature, that means you have to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin. So in this formula, dQV is equal to NCV dt. If you put dt as 1, then what is the answer left? NCV. लिखो formula लिखो. dQV is equal to, ये बराबर ना, dQV is equal to du. ये इधर देखो, ये आर्टिकल में एक्सटर्नल वर्क डन हुआ ही नहीं था, मतलब dQV is equal to internal energy and is equal to NCV dt. बराबर? So this is equal to this and this you are putting as 1. That means your answer is NCV. Your answer is NCV. This was 26th. Now let me check we can do 27th or no. हो चुका था. 28 को पेंसिल से सर्कल करो because I will have to teach you this article. What is the effect of impurities on specific heat? When you add impurities, what happens? 28th on hold, 29th on hold, 30 हो चुका था? हो चुका था कि नहीं? 30 हो चुका था, okay. 31, 31 to 36 तक? Okay, very good, very nice. चलो बेटा, 37th से लेके 37th इजी है, थोड़ा कॉमन सेंस है, थोड़ा नहीं पूरा कॉमन सेंस ही है, पढ़ो. Part of the latent heat to do work against atmospheric air pressure. मतलब external. Part of latent heat to be used to do a work against intermolecular से. तो 37 का आंसर है और 38 का आंसर बॉम्बे. 37 और 38 मैंने नहीं दिया था शायद. अरे हाँ यार, सॉरी. ओके, ये मैंने एडिशनल भेजा कल पेरेंट्स के ग्रुप पे. 39 to 44. चलो 39. Are we there? 39. Amount of heat used to convert unit mass of the solid into liquid. Solid to liquid, latent heat of fusion. Liquid to gas, latent heat of vaporization. Solid to liquid, latent heat of fusion. Underline the word solid to liquid. So latent heat of fusion. In 40th question, underline the word liquid to vapor. Latent heat of vaporization. 41. आया कि हेल्प करूं? आया बेटा. Q is equal to ml. पहले आपको L आया होगा और वो आया होगा जूल अपॉन किलोग्राम में, लेकिन आपके पास जो यूनिट्स है वो है किलो कैलोरी पर किलोग्राम, मतलब यू हैव टू डिवाइड बाय 4200. आया कि हेल्प करूं? पहले आपने फॉर्मूला यूज किया होगा बेटा, Q is equal to ml, मतलब L is equal to Q by m. ये आपको किस में मिला होगा? जूल पर केजी में. सारे यूनिट्स चेक करो, वो किलो कैलोरी पर केजी, मतलब आपका एक भी आंसर मैच नहीं होगा. तो ये जो आंसर आएगा ना, आंसर you divide it by 4200, then your answer will be in kcal per kg. जिनको नहीं आया था उनकी याद में, जिनको ये क्वेश्चन नहीं आया था उनकी याद में कॉपी करो. अगर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है तो आगे जाके बहुत हालत खराब होने वाली है, समझ के ले लो. क्वेश्चन नंबर 42. Question number 42. If the latent heat of fusion is 80 kilocalorie per kg, then the heat absorbed by 5 kg purely or insult. एक चॉकलेट 80 रुपए का, तो 5 चॉकलेट कितने का? 400 रुपए का. Bargaining not allowed. 5 पे 2 free not allowed. For 1 kilogram, if you need 80 kilocalorie, then for 5 kilograms you need how much? 85 सा. Yes or no? 1 किलोग्राम के लिए 80, 5 kilograms के लिए कितना? I hope you know the table of 5. I hope you know the table of 8 also. So I hope you know the table of 8. Next one. Am I pulling your legs? Very badly. Question number 43. उल्टा क्वेश्चन पूछा है. The latent heat of substance is 50,000 joule per kilogram. Then the amount of substance that changes state is 200 kilojoule. ऊपर वाला कितना किलोजूल था? अरे नालायक को 50 into 1000 is 50 kilojoule ना? What is the meaning of 50 into 1000 joule per kg? Is it 50 kilojoule per kg?
बराबर? क्या बोलते हैं इसको? Set of fingers which is to be filled with water and you have to jump into it. चुल्लू में पानी में डूब गया। ये 50 किलो जूल पर केजी हुआ कि नहीं? God bless me. Give me God, give me strength to teach the students. Then 200 किलो जूल will be for how much? ये 1 किलोग्राम के लिए है, तो 200 किलो जूल पर केजी कितने किलोग्राम के लिए होगा? अरे कल तो संडे था ना, अपना दिमाग का फ्यूज उड़ गया होगा। हम लोग एग्जाम से घर पे आते हैं, हमको सिंपल भी नहीं आता है, कुछ भी 1 4 4 भी नहीं आता है। कितने लोगों को ये आंसर नहीं आया? ईमानदारी से नहीं आया। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, बट टफ था, नहीं था ना? संडे जाके ईमानदारी से मेहनत करने का, सीरियसली बोलता हूँ, बराबर? मैं संडे तुम लोगों के एग्जाम से घर पे आने तक वेट करता हूँ, फिर मैं वेट करता हूँ कि अभी मैच टाइम टेबल डालेगा, फिर मैं सीधा अपना होमवर्क चिपकाता हूँ उधर। मतलब सोचो, मंडे भी मेरे दिमाग में स्टडी से रिलेटेड थॉट्स ही दौड़ते रहते हैं, राइट? संडे में कभी कभी रिपीटर बैच का भी लेक्चर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 6 दिन टाइम ही नहीं है। मंडे टू सैटरडे हॉलीडेज रिपीटर बैच, मतलब दो स्टूडेंट्स हु वर नॉट सक्सेसफुल लास्ट ईयर इन नीट एग्जाम, दे आर रिपीटिंग दिस ईयर, तो दे जॉइन द कोर्स अगेन, दैट इज रिपीटर्स बैच। ओके, वी कॉल दिस एज रैंक इम्प्रूवमेंट बैच। मतलब लास्ट ईयर भी उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, तो दे गिव अ ट्राई अगेन। समझ में आ रहा है? द वर्ल्ड इज वर्किंग सो हार्ड। आर वी? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, आर वी वर्किंग वेरी हार्ड? 99.9% स्टूडेंट को दिल में से आएगा नो। सॉरी, मैं थोड़ा सेंटी हो गया। 44th क्वेश्चन, इजी। The amount of heat required to convert 1 gram of water at 0 degree Celsius into water at 100 degree Celsius. एक ही स्टेप का सम है, MC थीटा, and your answer is 100 कैलोरी पर ग्राम। 45 बोला था? नहीं बोला। यस और नो? चलो बेटा, अभी मुझे देखना पड़ेगा कि अभी कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज अभी का क्वेश्चन लेंथी एकदम लेंथी है। चलो करते, कोई बात नहीं। 46th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। वन इज 46th and other is 48. One is 46, other is 48. बड़े बड़े हैंडराइटिंग में लिख के रखो, 46 के बाजू में लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, या तो ऐसे लिखो वाटर टू स्टीम, बेस्ट। 46 में लिखो वाटर टू स्टीम, और 48 में लिखो आइस टू वाटर। 48 में लिखो आइस टू वाटर। अब ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टाइल एकदम सेम, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टाइल एकदम सेम। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, बाद में उसके ऊपर से सब 1 by 1। आई एम सॉल्विंग 46th क्वेश्चन फर्स्ट। यू आर गोइंग टू कॉपी दिस आफ्टर आई फिनिश दिस। यू विल नॉट स्टार्ट विथ मी प्लीज, यू विल नॉट स्टार्ट विथ मी। If 1 gram of water having volume of 1 centimeter cube is occupying volume of 1671 centimeter cube, when converted into steam at its boiling point, then the external latent heat is, ध्यान से सुनो बेटा, is dq is equal to du plus dw, बराबर? If the heat energy is supplied in changing the state, can we write this as ml? स्टेट चेंज हुआ है, तो इसको मैं mli लिख सकता हूं, और इसको मैं mle लिख सकता हूं, बिकॉज ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में यूज हुआ होगा, और ये एक्सटर्नल वर्क डन में यूज हुआ होगा, और ये सप्लाइड एनर्जी है जो चेंज ऑफ स्टेट में यूज हो रहा है। तो if dq is equal to du plus dw, how do you read this as per Clausius law? Supplied energy is utilized in increasing the internal energy and doing external work. अभी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है सीधा। So can I say q is equal to ml? Therefore u is equal to mli.
इंटरनल, एंड दिस इज MLE. ये कट हुआ, ये कट हुआ, ये कट हुआ, बराबर. उन्होंने LE पूछा है, उन्होंने LE पूछा. प्लीज 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 डू नॉट स्टार्ट विथ टफ क्वेश्चन. Now DQE, can this be written as DW? सोचो, work is energy. DQE is M times LE. DW is PDV. यहां तक समझा? आज ही प्रूफ किया DW इक्वल PDV. सोच के बोलना, एकदम सोच के बोलना. जे से डिवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आराम से सोचो. आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज याद है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम का. ये प्रॉब्लम में क्या यूज करूंगा, LV की LI, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम. वेरी गुड. क्या वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू? ब्रिलियंट, वेरी गुड. व्हाट इज LV? इज इट 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम? मतलब ये कौन से यूनिट में है? हीट यूनिट में है, बराबर. अभी ये कौन से यूनिट में है? ये वाला. ये कौन से यूनिट में है? राइट साइड कौन से यूनिट में? PDV, न्यूटन मीटर, जूल, न्यूटन मीटर. तो राइट साइड कौन से यूनिट में बेटा? इन जूल. और ये कौन से यूनिट में है? इन किलो कैलोरी. तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है. क्या करने का? या तो इसको जे से मल्टीप्लाई करो या तो इसको जे से डिवाइड करो. चॉइस इज योर्स. जे से डिवाइड. समझा बेटा? अब जाके मेरा फाइनल फॉर्मूला आया. स्टेप्स का थॉट प्रोसेस सुनो, बिकॉज 45 से लेके 55 तक ऑल द प्रॉब्लम्स फॉलो द सेम फिलोसॉफी. हाँ, सो एकदम ध्यान से सुनो वन बाय वन. गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है. टेम्परेचर कम करो. लग रही है, करना टेम्परेचर कम. 22 पे कर. वो कॉर्नर में बैठा हुआ है. अब आगे सुनो वन बाय वन. बस चल. महिला मंडल. आज तुझे बोला महिला मंडल. डोंट वरी, तू दिख नहीं रहा कैमरा में. दिख नहीं रहा है बोला. समझ में तो आ गया सर ने ताना मारा. DQ DU plus DW. Supplied is internal plus external. So ML is MLI plus MLE. So L is LI plus LE. यहाँ तक समझा? One set of equations. Thought process. A very 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 important question. Now what is the meaning of DQE? Is it DW? DW is that part of heat supplied which is used in doing work against external pressure. Question number 47 and 48 respectively check करो. Last time का 47 और 48 था शायद. No, जिसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था. 39 और 40 होगा शायद. एक्सटर्नल इंटरनल कौन सा था देखो. सॉरी 37 38 करेक्ट. 37 38. So can we say DW is equal to DQE? अब ये किस में है? किलो कैलोरी में. कैसे मालूम? मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम है 540 किलो कैलोरी पर केजी, बराबर. लेकिन DW किस में होता है? DW is equal to PDV. प्रूव किया ना मैंने, जूल में है. मतलब if I write only the black one, MLE is PDV, equation is not balanced, right? When I write MLE is PDV upon J, then the equation is balanced. उन्होंने LE पूछा है, चेक करो बेटा. तो अभी के बाद याद रखने का, LE is equal to PDV upon MJ is a standard formula. मतलब आप ये याद रख सकते हो. जब आप ये सोल्यूशन कॉपी करो ना, ये खास लिखना. मतलब ये सब पूरा स्टोरी नहीं लिखोगे और डायरेक्ट प्रॉब्लम यहां से शुरू करोगे तो भी चलेगा. शुरू करो अभी. ओके चलो. व्हाट इज LE? P DV का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन MJ, बराबर. प्रेशर कितना होता है? कितना दिया है? अच्छा 1 atm का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम है सबको? 1.013 इंटू 10 टू द पावर प्लस 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सुना है सब लोगों ने कि पहली बार सुन रहे हो? 1 atmospheric air pressure is 1.013 into 10 to the power plus 5 Newton per meter square। पहली बार सुन रहे हो तो at the top या तो at the bottom of the page लिखो। iPad नोट्स में दिया है, यस, लेकिन हम लोग पढ़ते थोड़ी है, वो तो सर ने ऐसे दिया हुआ है ब्यूटिफिकेशन के लिए, अलग अलग कलर यूज करके। तो हम लोग कलर प्रिंट आउट लेके देखते हैं, वाह कितने अच्छे नोट्स, पढ़ते थोड़ी है। ऐसा तो बहुत कुछ सुंदर है लाइफ में, लेकिन हम लोग सिर्फ देख के खुश होते हैं, मतलब उसको यूटिलाइज नहीं करते। ताना मारा मैंने बहुत बुरी तरह से। ओके लिखो, आईपैड नोट्स में कौन से पेज पे दिया है? सॉरी, हाँ तो लिखो सीधा, रिफर आईपैड नोट्स पेज 2। जिनको एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर नहीं मालूम है वो लोग लिखो रिफर आईपैड नोट्स पेज 2। पक्का पेज 2 ना? पेज 2, वेरी गुड, करेक्ट। इसका मतलब 1 atmospheric pressure is 1.013 to 10 to 5. Now what is volume 2 minus volume 1? ध्यान से सुनो, 1671 minus 1 into 10 to minus 6. Why minus 6? डेटा सेंटीमीटर क्यूब में, मैंने इसको मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखा था, तो ये मीटर क्यूब हुआ। What is the mass of the body? 1 ग्राम की 1 किलोग्राम, so 10 to minus 3 किलोग्राम, and J का वैल्यू is 4200 जूल पर किलो कैलोरी, बराबर। तो नाउ इट इज 1.013 into 10 to the power minus 6 plus 5 minus 1 into 1670 upon 4.2। सोचो, right? This gives me 1, 2, correct? अब एकदम ध्यान से सुनो बेटा, एकदम ध्यान से, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं। 1.013 को मैं 1 लिख रहा हूं, 167 को मैं 168 लिख रहा हूं, राइट? बिकॉज 42 4 is 168, so 4.2 40 is 168। तो मेरा आंसर हो गया 40 किलो कैलोरी पर केजी अप्रोक्सीमेटली। मेरा आंसर हो गया 40 किलो कैलोरी पर केजी अप्रोक्सीमेटली। 40.00 समथिंग है। 40.27 बराबर है। 40.27। अरे तो नाला है तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम इज कैलोरी पर ग्राम ना, किलो कैलोरी पर किलोग्राम इज कैलोरी पर ग्राम। यस और ये पूरा गाना गाने के बाद एक मस्त कमेंट देता हूं। The must comment is when it is a problem of water to steam, when it is a problem of water to steam, 540 kilocalorie per kg is divided into 2 parts, 40 and 500. 40 towards external, 500 is internal, और ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, आप ये हमेशा याद रख सकते हो। बोलो बोलो बोलो। 540 सप्लाइड हीट है, उसमें से 40 एक्सटर्नल में जाता है, बाकी बचा 500। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 540 minus 40.27 is 499.73 kcal per kg is the standard answer. Is that very clear? आज मैंने वाटर टू स्टीम किया, नेक्स्ट टाइम मैं आइस टू वाटर करूंगा, पूरा एकदम क्यूट वे में करूंगा, और लास्ट में ऐसा 1 लाइन कर दूंगा, लास्ट दे दो अभी से, ठीक है? बिकॉज आइस टू वाटर में एनोमेलस बिहेवियर आ रहा है, ऊपर थोड़ा लॉजिक अलग है। ये ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड का हीट चल रहा है, ये साथ साथ में मेरा काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस चल रहा है, एकदम ध्यान से। मैं जब कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ ना, एक चैप्टर को ध्यान में रख के कभी नहीं पढ़ाता। आई मस्ट हैव टेकन, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, वीडियो के सामने बोल रहा हूँ, आई मस्ट हैव टेकन हाईएस्ट लेक्चर्स ऑन वेक्टर्स इन एंटायर इंडिया।
पूरे इंडिया में वेक्टर का टॉपिक कोई भी प्रोफेसर 6 से 7 लेक्चर से ज़्यादा पढ़ा ही नहीं सकता, उसका इंस्टीट्यूशन उसको अलाउ ही नहीं करता। मैं तो अपने इंस्टीट्यूशन का बॉस हूँ, तो मैं खुद ही अपने आप को अलाउ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका यूज़ आगे जाके किधर है। ओके, मैं नॉर्मल रिएक्शन नहीं पढ़ा हूँ और टेंशन नहीं पढ़ा हूँ, तो ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में आता है, फ्रिक्शन में आता है, मोशन रेमेडी में आता है, टेंशन का प्रिंसिपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आता है, हैंगिंग बॉडी। लेकिन ये मैंने अभी से क्यों करवा दिया, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि इसको टेंशन बोला था और इसको नॉर्मल रिएक्शन बोला था। सो देयर योर जॉब विल बिकम वेरी इजी। लेक्चर समझा बेटा आज का? बस एक लेक्चर खत्म हो गया। यस और नो? होमवर्क फॉर यू, वर्क वेरी हार्ड। Wednesday PCT stuff. लास्ट वीक नॉन फिजिक्स वीक था ना, तो तुम लोगों ने फिजिक्स को हाथ ही नहीं लगाया होगा। तो ये वेडनेसडे के DCT में मैं बैंड बजाऊंगा और संडे के एग्जाम में भी मैं बैंड बजाऊंगा। इस टाइम ज़्यादा क्वेश्चन होंगे हीट के। उसमें B और C हो सकता है, पर D ऑप्शन A और C। देखता हूँ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ठीक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बोल। 45 असाइनमेंट नंबर, एक मिनट। PdV अपॉन M मैकेनिकल यूनिट करेक्ट है, बिकॉज J से डिवाइड नहीं किया है। बॉम्बे इज PdV अपॉन MJ मैकेनिकल यूनिट रॉन्ग है। बाद में PdV अपॉन MJ हीट यूनिट में करेक्ट है। गॉड ब्लेस मी। तो वो तो ऐसी करेक्ट है, ठीक है। तरीका और मैंने करेक्ट बोला तो ऐसे कर रही है ऐसा खराब कर रही है। अच्छा अपने आप की नहीं बोला, मिस्टेक तेरा मिस्टेक था ना। सो वी स्टॉप हियर फॉर द डे, नो होमवर्क। साला थैंक यू बोलो। चिल्लाया है, बहुत होमवर्क के बहुत होमवर्क, जब होमवर्क नहीं तो थैंक यू बोलने का ना। हाँ चलो वी स्टॉप हियर। वर्क वेरी हार्ड, फेयरनेस इज डिसिप्लिन।